Other stories this morning. It's been 12 states and 150 states in over 150 days and over 3,500 kilometers. That is how Rahul Gandhi and his fellow Congress leaders that marched from Kanyakumari to Kashmir in what they called as the Bharat Jodo Yatra in a bid to unite the country. However, it has now become debatable whether or not they really managed to do so, or whether what's clear is that they have not been able to unite their own party and their own leaders. It seems that the trouble is mounting for the Congress in at least of the three states, which is also going to the elections there, where the party still exerts some kind of an influence. Now, if we talk about the immediate crisis ahead of them, appears to be one of them that is brewing in the state of Rajasthan, where Sachin Pilot is going to hold a day-long fast. Again, his own government's inaction on graft cases, something that he says that the party had promised before coming to power. And also, if we talk about the state of Karnataka, where the party is now preparing to return to power, but the question still remains who will get the CM's chair, because if they wins the people's mandate, because there are several CM aspirants who are looking forward to get that top post. If we talk about the state of Chhattisgarh, it appears not is all well between Chief Minister Bhupesh Baghel and the other senior Congress leader T.S. Singh Deo as well. But Rajasthan से शुरुआत करते हैं, जहां पर ये जो पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट थे, आज उनका एक दिन का अनशन होने वाला है। वो कह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में जितनी भी उन्होंने मांगे रखी थी और वादे करे गए थे राजस्थान की जनता से, अगर वो सरकार उनकी बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो पिछली सरकार जहां तक वसुंधरा राजे बीजेपी की जो सरकार थी, उस पर जितने आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप जितने लगाए हुए थे और उसमें केसेस की जितनी जांच चल रही थी, उनके ऊपर वापस जांच करवा दी जाएगी। ये वादा वो कहते हैं कि अभी तक 4.5 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो आज का एक दिन का अनशन पे बैठने वाले हैं। जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि मैंने तो अशोक जी से बहुत ज्यादा बोला है इस बारे में, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी, अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। Now, while his demands may be simple, it appears to have got the Congress on a flat foot. In fact, in the last 2 days, the party has issued very different statements on the agitation on the fast that Sachin Pilot has announced. While on Sunday, the party issued a statement which hailed Gehlot model of governance, the party did not even go on to mention the name of Sachin Pilot in the statement, merely hailed the work and the contributions that have been done by the Chief Minister Gehlot. However, the later statement, as far as the AICC state in charge, Sukhjinder Randhawa, called Pilot's agitation as anti-party activity that goes against the interests of the Congress, and he should be the one who has already had a discussion with the leadership before it was being raised to the media, something that he believes that Sachin Pilot could have avoided in the first place. But it appears that this argument hasn't found too many takers, क्योंकि दिखने में ऐसा नजर आ रहा है कि जहां तक राजस्थान कांग्रेस के अंदर ही 2 गुटों में बंटवारा हो चुका है, एक गुट ऐसा है जो सचिन पायलट का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। It is an expression of, let us say, the pressure of the people for action to be taken on certain issues. He is not taking and sitting on a hartal against Mr. Gehlot. He is sitting, let us say, in a more positive way on a demand for action to be taken against somebody. Mr. Gehlot is not saying, I will not take action. So he is not saying anything against Mr. Gehlot or the government or the Congress party, as far as I am aware. So within that parameter, I suppose the expression of public angst regarding corruption in the last government, I think that should not be seen as indiscipline. All right, so those are the talks that are now being done as far as we have been talking about the state of Rajasthan to the state of Karnataka, because there has been an ongoing debate whether it should be Siddaramaiah or whether it should be D.K. Shivakumar. But we'll be talking about the state of Karnataka in just a bit. Let's tell you more on the state of Rajasthan as far as the trouble that seems to be brewing. And this is just coming where the elections that will be announced soon enough. But here is the BJP, who has also come down in the defense of its former Chief Minister Vasundhara Raje, that the former Chief Minister has been cleared of the graft cases. And this is nothing as far as infighting within the Congress party that has been going on.
on, even when it comes to the AICC state in charge, Sukhjinder Randhawa calling Sachin Pilot's agitation as an anti-party activity. He is my leader, he is my AICC president. I love to work under him. Only answer. ಅವರು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. The reactions that are coming in from the state of Karnataka, but एक बार राजस्थान पे फिर से एक बार हम चले जाते हैं भंवर के साथ, जो हमारे साथ लाइव फिलहाल जुड़ रहे हैं. भंवर, आज के दिन शहीद स्मारक में जिस तरह से सचिन पायलट ने अनाउंस करा कि वो एक दिन के अनशन पर जाने वाले हैं, वहां के हालात के बारे में बताइए. कांग्रेस पार्टी में आखिरकार अंदर चल क्या रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है वो तो सामने आ ही गया है. एक अंतर कलह की जो बात होती थी वो खुलकर सामने आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के वीडियोस पत्रकारों को दिखाते हुए आरोप लगाए गए कि मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुनते हैं. मैंने दो खत लिखे, कोई जवाब नहीं मिला. मैंने करप्शन को लेकर जनता से जो वादे किए थे उस पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन 4 साल में कार्रवाई नहीं हुई. ये वो दरवाजा है जहां सचिन पायलट निकल करके अनशन के लिए जाएंगे. और देखिए, यहाँ लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं. लेकिन एक तस्वीर है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. आप देखेंगे गेट के ठीक सामने राहुल गांधी की एक तस्वीर है, जिसमें हाथ उठा करके ये माना जा रहा है कि जैसे यूं लगता है सामने सचिन पायलट का घर है. यहां हाथ लगा करके वो आशीष जब तक उनका रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी में चाहे कोई भी नेता हो वो वर्चस्व प्राप्त कर सकता है. तो एक कब तक अनशन के बाद ये हाथ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी. और इस पर प्रदेश की, देश की नजर है. इस अनशन के बाद राजस्थान की राजनीति, खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति किस तरफ रुख करेगी, क्योंकि चुनावी साल है, नजदीक है चुनाव. और जो ये लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं बात कर लेता हूँ. देखिए, आप कहाँ से आए हैं? पाली से है. अच्छा, क्यों आए हैं आज सुबह? हम सचिन पायलट के समर्थन में अनशन पर बैठने के लिए आए हैं. तो आपकी सरकार के खिलाफ ही अनशन है? सरकार के खिलाफ नहीं, जो वसुंधरा सरकार ने जो 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, जिस समय चुनाव के समय, जिस समय हम विपक्ष में थे, तो इस मुद्दे को कहा कि जिस समय अपनी सरकार बनेगी तो जो वसुंधरा का खनन घोटाला, बजरी घोटाला, जो भी घोटाले हुए थे उसकी जांच करवाएंगे. कौन करेगा? आप ही की सरकार थी, क्यों नहीं सरकार करेगी? अशोक जी गहलोत जांच वसुंधरा के खिलाफ कर रहे नहीं, उनके कर रहे हैं. हो सकता है दोनों में साठ-गांठ हो. अच्छा, तो आप ही की पार्टी का अंदर का मामला हो गया? नहीं, पार्टी का है तो क्या मतलब, भ्रष्टाचार का तो उनको खिलाफ आवाज तो उठानी अनिवार्य है. तो आप पायलट के साथ हैं? हम पार्टी के साथ हैं और सचिन पायलट के साथ हैं. अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं पाली से. अच्छा, क्यों आए हैं? हम लोग आज सचिन पायलट साहब ने जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के भ्रष्टाचार का के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी और कहा था कि जनता से वादा किया था 2014 में कि हम लोग जब कौन ये वादा पूरा करता, किसने नहीं किया वादा? तो हम लोग जैसे अशोक गहलोत साहब ने खुद ने कहा, हम लोग वसुंधरा पर आरोप लगाए थे वसुंधरा जी पे कि हम लोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो है, सारा सब कुछ है. लेकिन जैसे सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद क्या पता उन दोनों में हम लोग आपस में मेल मिलाप या कुछ या कोई ऐसा हो गया जो जांच करनी चाहिए थी, वो कर नहीं रहे. उल्टा केंद्र सरकार, कांग्रेस के जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी के खिलाफ. केंद्र को छोड़िए, आप राज्य की बात करिए. आप ये बताइए कि आपकी सरकार में दरार नहीं है. 4.25 साल से आपके जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही. अब तो वो अशोक जी सोच रहे हैं कि अब कहीं सचिन पायलट अगर आ गए और युवा जो सचिन पायलट के साथ जो जुड़ा हुआ और वापस अगर कांग्रेस की अगर सरकार अगर रिपीट करनी है तो सचिन पायलट को लाना होगा. और वो सोच रहे हैं कि नहीं, मैं और उनको पुत्र मोह है. चलिए, युवाओं की बात हो रही है, आपसे जानेंगे. युवा नेता सचिन पायलट हैं, गहलोत भी आपके नेता हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? अनशन हो रहा है सरकार? सचिन जी पायलट ने लगभग राजस्थान में पूरे भारत के हृदय समाटे युवाओं के. और सर, सचिन जी पायलट आज अनशन पे बैठे हैं. सर, वो जिस टाइम वसुंधरा जी सत्ता में थी उस टाइम जो वसुंधरा जी के घोटाले हुए थे, कहानी पता है. इस अनशन का क्या असर होगा? अनशन का असर होगा सर, इनके साथ युवाओं के जुड़ेंगे. जो घोटाला जो भी हुआ उनके सबके सामने सच्चाई होगी, क्या घोटाला हुआ है. और सर, राजस्थान के जितने भी युवा तो नहीं है, चुनाव नजदीक है तो लगे धरना देना. चुनाव कोई इश्यू नहीं है, इसी कोई बात नहीं है. सचिन जी पायलट हमेशा से मजबूती से संघर्ष करते आ रहे हैं, बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं. बीजेपी का आरोप लगा रही है कि 4.25 साल से तो कुछ किया नहीं, अब अनशन पे अचानक आ गए. तो सर जी, ये तो क्या मजबूरी हो गई पायलट साहब की, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कि मैं बिल्कुल जांच कराऊंगा, मैं बिल्कुल युवाओं का साथ दूंगा और जो जैसा कर रहा है वैसा उसको भोगना पड़ेगा. तो उन्होंने
4 साल खूब मेहनत की, खूब लांछन लगाए, खूब सीटियां लिखी, लेकिन सरकार पे इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा। तो इसमें सर जी पब्लिक को ये लग रहा है, राजस्थान वासियों को ये लग रहा है कि इसमें इनका दोनों का 5 साल इनका 5 साल इनका, ये घोटाला करे तो वो छुपा लेगी, ये वो घोटाला लोग आए हैं करेगी। सामने, ये सपोर्टर्स बताए जा रहे हैं सचिन पायलट के, उनके घर के सामने अभी आप पहुंचे हुआ कह रहे हैं कि ये पार्टी विरोधी एक्टिविटी नहीं है। अगर वो एक दिन का अनशन कर रहे हैं तो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन उसके पूर्व जो वसुंधरा राजे की सरकार की, भाजपा की सरकार की, उसके खिलाफ जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन केसेस में जांच की मांग के उठा रहे हैं। पर ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, यहां तक उनके सपोर्टर्स सामने आकर कह रहे हैं। भंवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दोज आर द लाइव अपडेट्स।